Assalamu alaikum dear students. In previous class you have studied the definition of hydrocephalus and its etiology. That means what are the causes of hydrocephalus and also what are the clinical manifestations of hydrocephalus. Now today you will see the investigations. That means how hydrocephalus is diagnosed. हम hydrocephalus को कैसे diagnose करते हैं, इसके लिए कौन कौन से tests किए जाते हैं. Firstly, X-ray is done. X-ray of the skull. X-ray of the skull is done for hydrocephalus. This shows widening of the fontanelle and sutures. As you know, in hydrocephalus जो anterior fontanelle होता है वो bulged होता है, enlarged होता है and non-pulsative होता है. By X-ray of the skull, it shows widening of the fontanelle and also the sutures. Also, transillumination. Another one is the transillumination. Transillumination of infant's head. Transillumination another test है, ये भी किया जाता है. ये क्या दिखाता है? It shows visualization of fluid collection. As you know, hydrocephalus condition में क्या होता है? There is accumulation of excessive cerebrospinal fluid within the intracranial cavity में. इसलिए क्या किया जाता है? एक टेस्ट है, दैट इज ट्रांसइल्यूमिनेशन टेस्ट. ट्रांसइल्यूमिनेशन टेस्ट जो है ये एक डार्क रूम में किया जाता है. उसके बाद ब्राइट लाइट शाइन की जाती है अपॉन द ऑर्गन एंड इसमें हम क्या करते हैं? विजुअलाइज करते हैं जो यहाँ पे एक्सेसिव एक्यूमुलेट हुआ होता है, CSF कलेक्शन होती है, उसको विजुअलाइज करते हैं बाय ट्रांसइल्यूमिनेशन. Another one is percussion. Percussion of human skull is done. जो इन्फेंट का हेड है, जो ये चाइल्ड का हेड है, स्कल है, इसको परकशन किया जाता है, टैपिंग की जाती है. इसकी वजह से क्या होता है? जब परकशन किया जाता है वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज अ टिपिकल क्रैक्ड पॉट साउंड. वहाँ पे एक साउंड निकलती है, दैट इज टिपिकल क्रैक्ड पॉट साउंड. दैट साउंड इज नोन एज Mach-1 sign. This is the important one. Mach-1 sign में क्या किया जाता है? और सिंपली इसमें हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, इसमें Mach-1 sign देखा जाता है. Mach-1 sign हम क्या बोलते हैं? परकशन किया जाता है ह्यूमन स्कल का, जो चाइल्ड है इसके हेड परकशन किया जाता है. वहाँ पे एक टिपिकल साउंड निकलती है. कौन सी साउंड? वो होती है जैसे क्रैक्ड पॉट साउंड निकलती है, उसी साइन को हम बोलते हैं Mach-1 sign. Also, in addition to this, ventriculography of the brain is done. Ventriculography. Ventriculography of the brain is done. By ventriculography, in ventriculography, abnormalities are visualized in the ventricular system of subarachnoid space. Abnormalities are visualized. इसमें हम देखते हैं जो abnormalities होती है कहाँ पे? In the ventricular system of subarachnoid space.
दैट्स बाय वेंट्रिकुलोग्राफी। इन वेंट्रिकुलोग्राफी एबनॉर्मलिटीज जो है वो हम विजुअलाइज करते हैं किसमें जो होती है इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द सब अरेकोनाइड स्पेस में। Another test is also done, that is the pneumonoencephalography. Encephalography. Pneumonoencephalography. This shows dilated ventricles and also the extent of brain damage and the location of obstruction. न्यूमोनोएन्सेफेलोग्राफी भी की जाती है। इसमें न्यूमोनोएन्सेफेलोग्राफी से क्या पता चलता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। किसकी वजह से? सीएसएफ जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन है वो डायलेट हो जाते हैं। और हम न्यूमोनोएन्सेफेलोग्राफी से क्या पता चलता है कि किस हद तक ब्रेन डैमेज होता है। एंड द लोकेशन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, जो ऑब्स्ट्रक्शन है कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन ऑफ द सीएसएफ में जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कहाँ पे है, दिस इज ऑल विजुअलाइज्ड बाय द pneumonoencephalography. By these tests, hydrocephalus was diagnosed. After diagnosis, treatment is started. Treatment is given to the patient. Now, what's the treatment of hydrocephalus? इसमें कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है? इसके लिए एक ट्रीटमेंट है, दैट इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट कौन सा है? देयर इज द इंस्टॉलेशन ऑफ शंटिंग डिवाइसेस, दैट इज द इंस्टॉलेशन ऑफ शंटिंग डिवाइसेस। Installation of shunting devices. Installation of shunting devices is the surgical treatment of hydrocephalus. इससे क्या हो जाता है, जो इंस्टॉल हम करते हैं शंटिंग डिवाइसेस, ये ड्रेन आउट करता है इस सीएसएफ को टू अनदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी में। इसकी वजह से रिड्यूस होता है जो सीएसएफ का वॉल्यूम है वो रिड्यूस होता है। दस द प्रेशर ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विद द वेंट्रिकल्स इज आल्सो रिड्यूस्ड। नाउ जो ये shunting devices होते हैं, this contains, shunting devices contains one way value mechanism. Shunting devices contain one way value mechanism. अब हम देखते हैं ये one way value mechanism क्या होता है। That means कि it directs flow only in one direction. It directs flow on one direction. That is the one way value mechanism. That means it prevents reflux. इसमें reflux नहीं होता है। That is the one way value mechanism. Simply जो इसका ट्रीटमेंट है that is the surgical treatment. Surgical treatment में हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं shunting devices. शंटिंग डिवाइसेस जो ये होते हैं, द शंट कंटेन्स वन वे वैल्यू मैकेनिज्म। इनमें क्या होता है, जो ये डिवाइसेस हम यूज करते हैं इनमें वन वे वैल्यू मैकेनिज्म होता है। इसका क्या मतलब है, जो ये वन वे वैल्यू मैकेनिज्म होता है, इट मीन्स कि इनमें डायरेक्ट हो जाता है फ्लो ऑन ओनली इन वन डायरेक्शन। दैट मीन्स कि इसमें रिफ्लेक्स नहीं होता है, इट प्रिवेंट्स रिफ्लेक्स। इसकी वजह से क्या होता है, इट हेल्प्स टू reduce volume and thus also pressure of CSF within the ventricles is also reduced. This is the surgical treatment. Now अब हम देखते हैं जो हम ये shunting devices यूज करते हैं, installation of shunting devices, ये devices होते क्या है। Installation of shunting devices में हम two devices यूज करते हैं, that is ventriculotransducer
peritoneal shunt. Another one is the ventriculoatrial shunt. These are two shunting devices that are used as a surgical treatment of hydrocephalus. Ventriculoperitoneal shunt and ventriculoatrial shunt. Now first you will see the ventriculoperitoneal shunt. Ventriculoperitoneal shunt is also abbreviated as VP shunt. That means ventriculoperitoneal shunt. Ventriculoperitoneal shunt में होता क्या है? It directs CSF from lateral ventricles or the spinal subarachnoid space to peritoneal cavity. In installation of shunting devices में firstly आप लोग देख रहे हैं जो है that is VP shunt, ventriculoperitoneal shunt. Ventriculoperitoneal shunt में क्या होता है? जो CSF है वो डायरेक्ट हो जाता है, CSF जो है वो फ्लो हो जाता है. कहाँ से CSF फ्लो होता है? ये एक्सेसिव एक्यूमुलेट होता है विद इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में. ये एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाती है, इसमें सिक्रीशन होती है ज़्यादा इसकी. तो इसमें हम क्या करते हैं? जो CSF है ये फ्लो हो जाता है फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल्स या ये फ्लो हो जाता है स्पाइनल subarachnoid स्पेस से टू द पेरिटोनियल कैविटी. सो द नेम ventriculoperitoneal shunt. फ्रॉम वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन टू द पेरिटोनियल कैविटी CSF फ्लो हो जाता है. अब हम देखते हैं ये कैसे फ्लो होता है. इन VP शंट में क्या है? इसमें एक ट्यूब पास किया जाता है. ट्यूब इज पास्ड from the lateral ventricles through an occipital burr hole through the posterior aspect of neck. VP शंट में जो ये फ्लो होता है फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल्स टू द पेरिटोनियल कैविटी में कैसे फ्लो होता है? VP शंट में क्या किया जाता है? एक ट्यूब जो है वो पास किया जाता है. कहाँ से? फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल से वो पास करते हैं वो ट्यूब थ्रू द एक बार होल किया जाता है थ्रू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक. वहां से ही ट्यूब को पास किया जाता है टू द पेरिटोनियल कैविटी में. टू द पेरिटोनियल कैविटी. पेरिटोनियल कैविटी में क्या किया जाता है? एक स्मॉल इंसिजन दिया जाता है. जैसे यहाँ पे पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक में एक बार होल करते हैं वैसे ही पेरिटोनियल कैविटी में एक स्मॉल इंसिजन दिया जाता है इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट में. इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट में. सो CSF is flowed from lateral ventricles to the peritoneal cavity. This is the VP shunt. VP शंट जो है इसमें जो ये ट्यूब होता है ये सबक्यूटेनियसली चला जाता है. इसको डाला जाता है सबक्यूटेनियसली. दिस इज द VP शंट. Similarly, another shunt is that is VA shunt, ventriculoatrial shunt, abbreviated as VA shunt. वहां पे था VP shunt, अब है VA shunt. VA shunt जो है that is passed from the VA shunt जो that is passed from dilated ventricles VA shunt जो है इसको पास किया जाता है from the dilated ventricles से. कहाँ से? through a burr hole in the parietal region.
through a burr hole in the parietal region of skull. उसके बाद जो ये ट्यूब है, it is passed under the skull behind the ear. It is passed under the skull behind the ear into a vein down to a point where it discharges it into the right atrium and superior vena cava. This is the VA shunt. VA shunt में क्या करते हैं? VA shunt में जो CSF है उसको वो फ्लो हो जाता है from ventricles of the brain to the right atrium of the heart. So the VA shunt, ventricular atrial shunt. अब हम देखते हैं VA shunt जो है इसको पास किया जाता है from the dilated ventricles से, from the dilated ventricles through एक बार होल किया जाता है in the parietal region of the skull. उसके बाद ये जो ये ट्यूब है, it is then passed under the skull behind the ear into a vein, deep vein down, जहाँ पे ये इसको डिस्चार्ज करते हैं इस CSF को, फिर इसके बाद इसको डिस्चार्ज करते हैं कहाँ? राइट एट्रियम एंड सुपीरियर वेना केवा में इसको डिस्चार्ज करते हैं. दिस इज द VA शंट. जो ये ट्यूब होते हैं इनमें वन वे प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम होता है ताकि रिफ्लेक्स ना हो. जो पहले ही मैंने कहा, इंस्टॉलेशन ऑफ शंटिंग डिवाइसेस में जो है दैट इज हैविंग वन वे वैल्यू मैकेनिज्म, दैट मीन्स इट प्रिवेंट्स reflex. This is all about the hydrocephalus. Thank you.